that we discussed till now, किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। एनीवन, टेक 30 seconds. In this time, meantime, let other people join. And if anyone having any doubt regarding cloud computing services, issues, challenges, so many service providers, ठीक है, तो किसी को कुछ भी हो, virtualization, बताएं बेटे। शमशाद, शमशाद, जी सर। कोई डाउट बेटे, कोई कंफ्यूजन किसी नहीं वर्ड सर, में? कुछ नहीं। ओके, आनंद गुप्ता, आनंद गुप्ता, यस सर। एनी कंफ्यूजन? नहीं सर, अभी तो नहीं है। ओके, so now let me yes, now it's visible. ये विजिबल है? यस सर। तो जिस ये मैं आपको बता दूंगा अजूरे के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट वर्किंग अजूरे, तो कैसे इसकी वर्किंग कैसे थी हमने देखा था ट्यूटोरियल व्यू में। दिस वन, माइक्रोसॉफ्ट अजूरे है, वी हैव डिस्कस, यस दिस वन, दिस इज द वर्किंग, वी हैव geography, then we divide the geography into several regions, then regions into availability zone, then availability zone having so many data center, in one data center we have so many clusters. So in this way we have this framework of working of Microsoft Azure. So now next cloud service provider जो हम पढ़ने जा रहे हैं, that is Azure pricing, ना इसकी pricing कैसे होती है? So it follows pay as you go model. I think मैंने इसको भी बता ही दिया था last time. Yes, next one, Amazon Elastic Compute Cloud, Amazon EC2. It's a very well known cloud service provider service, Amazon EC2. It comes under the category of IaaS, Infrastructure as a Service. EC2 stands for Amazon Elastic Compute Cloud. Is a web service that provides resizable compute capacity in the cloud. It means processing वगैरह, processing speed. So resize, you can scale up, scale down as per your requirement, as per your application speed. You can scale the compute capacity up and down as per the computing requirement changes, जैसे मैंने बताया भी आपको. So Amazon EC2 changes the economic of computing by allowing us to pay only for the resources that we actually use. It means we rent the resources for some specific duration, and then we have to pay for what they actually consume. So rather than previously, क्या होता था? Previously we buy a physical server. You would look for a server that has more CPU capacity, RAM capacity, and you have a server over 5-year term. So you have to plan for 5 years in advance, like it maintenance, इसकी लोकेशन कहाँ होगी, सर्वर रूम होगा उसका, उसको मेंटेन करना, उसकी कूलिंग, सारी चीजें हमको मेंटेन करनी पड़ती है. People spend a lot of capital, lot of money in such investment. EC2 allows us to pay for the capacity that you actually, ठीक है. मैंने इसको एग्जांपल बार बार एग्जांपल दे भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग हैज ए कमर्शियल कैपेसिटी, इट कम्स फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू. तो यहाँ पे यही है कि एक सुपर कंप्यूटर परचेज करने से अच्छा है कि हम सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है, जो प्रोसेसिंग स्पीड, जो रैम, उसको हम जिस टाइम के लिए हमको चाहिए, 1 ईयर, 6 मंथ, 3 मंथ, 1-2 आवर, उसको हम उस टाइम के लिए रेंट पे ले सकते हैं और उसको इस्तेमाल करके उसको फिर रिलीज करते हैं. तो बाय डूइंग दिस वी डोंट हैव टू इन्वेस्ट like huge, we don't need huge capital, maintenance cost, upgradation cost, all this, है ना. उसके मेंटेन में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, because all these things are managed by cloud service provider. You have to just like provided some ID password and you have to use. Then Amazon EC2 provides the developer with the tools to build resilient applications that isolate themselves from some common scenario.
तो EC2 प्राइसिंग ऑप्शन, तो वेरियस टाइप, ऑन डिमांड EC2 प्राइसिंग, रिजर्व EC2 प्राइसिंग, स्पॉट इंस्टेंसेस, डेडिकेटेड हाउस। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ सारी चीजें आपको, जब आप इसमें रिसर्च करना चाहेंगे देन you must know what is the characteristics of this CPU, स्टोरेज के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। तो तभी आप उसको अपने रिसर्च मॉडल में, अपने प्रपोज मॉडल में उसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, जब तक आपके बारे में पता नहीं है कि ये मॉडल किस तरीके से काम करता है, तो उसको कैसे आप क्वांटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे सब लोगों ने सुना होगा MIPS एंड फ्लॉप, नाम सुना है इसमें आप लोगों ने किसी का? फिर से MIPS, MIPS एंड फ्लॉप, बताइए क्यों नाम सुना है? सुना होगा आप लोगों ने, कंप्यूटर के बारे में पढ़ते होंगे तो। फ्लॉप्स का नाम सुना है? बताएं बेटे, एनीवन? MIPS and flops, these two are the measuring unit of CPU. MIPS means millions of instruction per second. अगर से आपने कहा कि 1000 MIPS आपकी CPU की स्पीड है, it means it can process 1000 million of instruction per second. Flops क्या है? It is also same thing, floating operation per second, है ना, floating point operation per second. तो कितने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन परसेंट कर सकता है? तो अलग अलग आर्किटेक्चर, अलग अलग ये चीजें यूज होती हैं। जैसे मैंने अपने रिसर्च में क्या यूज किया था, MIPS यूज किया था। भाई सीपीयू है, अब हमारे पास एक्स्ट्रा क्लाउड था नहीं, तो हमने इसको सिमुलेट किया क्लाउड सिम यूज करके। क्लाउड सिम में टूल है, कब चाहे तो अब ये फ्रीली है, जावा के अंदर, जावा बेस्ड डेवलप टूल है, इसको जावा अच्छी आती है, यू कैन यूज क्लाउड सिम। सिमुलेटर है, इट अलाउस अस टू क्रिएट अ डाटा सेंटर, फिजिकल हाउस, क्रिएट virtual machines on this physical house, bandwidth, storage, CPU, core, how many core are present, ये सब चीजें हमको प्रोवाइड करता है एज ए सिमुलेशन, एक्चुअल में नहीं। तो इसके लिए कोडिंग की गई जावा में, इट इज अ वेरी गुड टूल। तो मैंने भी इसका यूज किया था अपने रिसर्च में, और उसके बाद फिर मैंने मैटलैब यूज किया। मैटलैब इज ऑल्सो, आपको पता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये यूज किया। तो इसको हम सिमुलेट करने के लिए हमें सीपीयू के बारे में जानना चाहिए कि EC2 क्या होता है, तभी तो इसको सिमुलेट कर पाएंगे। EBS, ब्लॉकिंग स्टोरेज, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? EC2 के बारे में। किसी को कुछ डाउट है अब तक? यहाँ तक पूछ सकता है। यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट? बताएं बेटे, किसी को कोई डाउट है? ओके, नाउ लेट मी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। On demand EC2 pricing. First pricing is what? On demand. It allows us to pay a fixed rate by the hour or even by the second with no commitment. So by second you can pay by hour, Linux instance by second and Windows instance by hour. तो विंडो का अगर से कुछ आप लेते हैं तो बाय आवर पे करना होगा आपको, और लाइनक्स इंस्टेंस लेते हैं बाय सेकंड। ऑन डिमांड इज परफेक्ट फॉर द यूजर हु वांट टू लो कॉस्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ Amazon EC2 विदाउट एनी अपफ्रंट। अपफ्रंट मींस व्हाट? कैपिटल है ना, जो आपको पैसे लगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होता है उसे हम अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो ऑन डिमांड इज वेरी गुड प्राइस। इट इज सुटेबल फॉर द एप्लीकेशन विद शॉर्ट टर्म स्पाइकी और अनप्रिडिक्टेबल वर्कलोड दैट कैन नॉट बी इंटरप्टेड। इसका मतलब क्या हुआ लास्ट लाइन का? इसकी मीनिंग यही है कि आपने एक वेबसाइट शुरू करी, चिट चैट की, फेसबुक टाइप की वेबसाइट शुरू करी, तो आपको पता नहीं कि आपका वर्कलोड कब बढ़ जा रहा है, कब घट जा रहा है। फिर आपने ये एनालाइज किया कि फॉर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपका वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है आपके वेबसाइट, तो फॉर दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन हायर दिस Amazon EC2 ऑन डिमांड प्राइसिंग। ये आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, 2 घंटे के लिए आपने ले लिया, 2 घंटे के लिए पे किया, देन यू आर फ्री। तो अब जब आप रिसर्च मॉडल बनाएंगे तो उसमें आपका मॉडल कौन सी प्राइसिंग स्कीम फॉलो कर रहा है? ऑन डिमांड फॉलो कर रहा है या स्पॉट फॉलो कर रहा है, या दोनों ही फॉलो कर रहा है? कुछ केसेस पे भाई अब चूंकि एप्लीकेशन तो बहुत सारे आते हैं क्लाउड के पास, अमेज़न के पास बहुत सारे एप्लीकेशन वो होंगे यूजर, कुछ ऑन डिमांड मांगते होंगे, कुछ स्पॉट इंस्टेंसेस। तो अब आपको ऐसा मॉडल डेवलप करना है जिसमें ये सारी के सारे फीचर्स अवेलेबल है ना। तो ऑन डिमांड कब चाहिए होगा, स्पॉट कब चाहिए, अगर से कोई यूजर कहता है ऑन डिमांड चाहिए तो उसको कोडिंग से कैसे उसको हम सॉल्व करें। ठीक है, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉडल बनेगा आपका, मिक्स है। ठीक है, तो
This is the meaning of on demand EC2 pricing. Then it is useful for applications that have been developed or tested on Amazon EC2 for the first time. On demand instance is recommended when you are not sure which instance type is required for your performance needs. Any doubt? Take 30 seconds, read all these lines about on demand EC2 pricing and let me know in case of any doubt. Yes, all of you. बताएं बेटे, कोई डाउट है या आगे चलें? बताइए. No, sir. Okay. Now next is reserved EC2 pricing. So it is a way of making a reservation with Amazon, or we can say that we make a contract with Amazon. The contract can be for 1, 2 or 3 years in length. तो एटलीस्ट 1 ईयर का होना चाहिए. तो रिजर्व कर लिया हमने उस पे, एज नेम इज सजेस्टिंग इटसेल्फ ना, रिजर्व इसकी प्राइसिंग कि भाई हमको ये इक्विटी चाहिए होगा, इस कैपेसिटी का चाहिए होगा और 1 ईयर के लिए चाहिए. तो यू हैव रिजर्व इट. तो इसको आप यूज करें या ना करें, आपको एक साल के लिए पे करने की. ठीक है, अगर से आप बहुत ही श्योर हैं कि नहीं आपको ये पावर चाहिए ही चाहिए, आपके एप्लीकेशन इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना डिमांडिंग है कि आपको इतने सारे यूजर्स हैं कि आपको, यू कैन गो फॉर रिजर्व. In reserve instance, making a contract means you are paying some upfront, so it gives you significant discount on the hourly charge for an instance. It is useful for application with steady state or predictable usage. It is used for those applications that require reserve capital. User can make upfront payments to reduce their total computing cost. For example, if you pay all your upfront and upfront of capital and you do the 3 years contract, then only you can get a maximum discount. तो जाहिर सी बात है, जैसे भी आप जाते हैं सामान ज्यादा लेते हैं डिस्काउंट मिलता है, तो यहाँ डिस्काउंट मिलेगा. एंड इट डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी ऑफ विच इज प्रोवाइडेड बाय Amazon. एंड इफ यू डोंट पे all upfront and do 1 year contract, then you will not be able to get as much discount as you can get if you are to 3 year contract. मतलब एक कॉमन मार्केटिंग पॉलिसी है, एक साल के लिए लेंगे तो डिस्काउंट कितना मिलेगा, 3 साल के लिए डिस्काउंट. So you have to implement all these things, है ना. Types of reserve instances: standard reserve instances, convertible reserve instances, and scheduled reserve instances. Next one, spot pricing options. तो चल रहा है हमारा spot standard reserve instance. में क्या होता है? It provides a discount up to 75% off on demand. For example, you are paying all upfront for 3 years contract. Then it is useful when your application is at the steady state. Then convertible reserve instances क्या होता है? यहाँ जो पढ़ा था ना, तीन तरह के पढ़े थे आपने. स्टैंडर्ड रिजर्व इंस्टेंसेस, लास्ट लाइन देखिए, स्टैंडर्ड रिजर्व, कन्वर्टेबल रिजर्व इंस्टेंसेस एंड शेड्यूल्ड रिजर्व इंस्टेंसेस. ये 3 इंस्टेंस पढ़े हैं आप. तो पहला क्या है स्टैंडर्ड, इसमें क्या है कि अगर आप 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ आपने तो आपको 75% ऑफ ऑन डिमांड मिलेगा. यूजफुल. नाउ इसमें इट प्रोवाइड्स अ डिस्काउंट अप टू 54% ऑफ ऑन डिमांड. It provides the feature that has the capability to change the attribute of R1 as long as the exchange results in the creation of reserve instance of equal or greater value. R1 मतलब क्या? RI मतलब reserve instance. ठीक है, RI stands for reserve instance. Like standard reserve instance, it also useful for steady state application. Then scheduled reserve instances are available to launch within the specified time window you reserve. आपने जिस टाइम पीरियड के लिए रिजर्व किया हुआ उसके विद इन टाइम तो लॉन्च कर सकते हैं. इट अलाउज अस टू मैच योर कैपेसिटी रिजर्वेशन टू प्रेडिक्टेबल रिकरिंग शेड्यूल दैट ओनली रिक्वायर्स द फ्रैक्शन ऑफ डे और वीक और अ मंथ. देन थर्ड वन इज द स्पॉट इंस्टेंस. स्पॉट ये आजकल बहुत चलता है. स्पॉट इंस्टेंसेस का मतलब क्या है? एक तरह का निगोशिएशन होगा आपके बीच में और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के बीच. और निगोशिएशन का मतलब होता है कि इसमें क्या कहते हैं उसको, ऑक्शन, AUCTION, ऑक्शन होता है. जैसे ऑक्शन देखा है, कभी कभी किया आप लोगों ने ऑक्शन? कभी किसी ऑक्शन में गए हैं? नो सर, देखा है. देखा है, मूवी में देखा होगा. कोई बिल्डिंग कोई हवेली ऑक्शन होता है तो जैसे सबसे हाईएस्ट बिड करता है उसको मिलती है. यहाँ भी क्या है कि आपने वर्चुअल मशीन हायर कर रखी है और उसकी प्राइस डायनामिक है, फिक्स नहीं, क्योंकि ऑक्शन में फिक्स नहीं होगी प्राइस, डायनामिक होगी. मान लीजिए आपने अगर से 100 रुपए की मशीन हायर कर रखी है, अब उसी मशीन की कैपेसिटी की आपको कहीं और मिल रही है, वो मिल रही है 60 में, देन यू कैन
स्विच, यू कैन रिलीज द ऑलरेडी यूज मशीन और आप उसको वहाँ जा सकते हैं। तो ये बहुत ही डायनेमिक होता है क्योंकि आपको बार-बार बिल्ड करके देखना पड़ेगा और सर्विस प्रोवाइडर को भी इसको अपने यूज़र्स को टाई अप रखना है कि भई वो छोड़ ना जाए। इट अलाउस अस टू बिड फॉर a price, whatever price that you want to, for instance, capacity and providing better saving if your application has flexible start and end time. Spot instances are useful for those applications that have flexible start and end time. It is useful for those applications that are feasible at very low compute service. तो इसके लिए फिर आपको बहुत सारी इकोनॉमिक्स की थ्योरी लगानी पड़ेगी। अगर से आप ये वाला मॉडल फॉलो करते हैं अपने रिसर्च में या कुछ किसी कंपनी में जाते हैं या उसने आपको स्कीम डाल रखा कि स्पॉट वाले में आपको काम करना है, तो आपको बहुत सारे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, नेगोशिएशन, बिडिंग, ऑक्शन की जो स्ट्रेटेजी होती है इकोनॉमिक्स के अंदर, वो लगानी पड़ेगी जिससे एक तो प्रॉब्लम ये आती है ऑक्शन में मोनोपोली ना हो, जैसे रिलायंस है, टाटा है, तो मोनोपोली ना हो इस तरह की। अगर से मोनोपोली हो जाएगी तो क्या होगा? जैसे अभी देखा आपने जियो है, जियो चल रहा है, तो जियो ने फ्री दिया तो अब जियो की मोनोपोली हो गई। तो इस तरह की मोनोपोली मार्केट में ना हो, क्योंकि मोनोपोली इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर अ फ्री मार्केट, ठीक है? तो ऐसे ही सर्विस प्रोवाइडर बहुत सारे हैं। तो अगर से किसी एक सर्विस प्रोवाइडर की मोनोपोली हो जाएगी तो वो अपने मनचाहे दाम पे बेचेगा। तो ये चीज़ें मेंटेन करना है आपको, ना अपने उसमें ये सारी चीज़ें कैसे हों। अ, EC2 spot instances provide less discounts as compared to on-demand prices. Spot instances are used to optimize your cost and Amazon Web Service Cloud and scale your applications to up to 10x. तो ये सब फीचर्स हैं इसके। नाउ डेडिकेटेड होस्ट EC2 प्राइसिंग। A dedicated host is physical server with EC2 instance capacity which is fully dedicated to your use. ये सिर्फ आपके लिए ही यूज होगा। एज डेडिकेट का नाम ही लिखा हुआ यहाँ पे। The physical EC2 server is dedicated host that can help you reduce cost. For example, VMware, Oracle, SQL Server, depending on the license that you can bring over to AWS, and then they can use the dedicated host. ये सब आपके यहाँ इसमें है, ये क्या लिखा हुआ है? It can be purchased as a reservation for up to 70% off on demand price. तो ये हमारा EC2 के बारे में था, मतलब CPU के बारे में। EC2 stands for CPU, Elastic Compute Cloud. Now next is Amazon EBS. ये सर्विस क्या है? Elastic Block Storage. आपके हार्ड डिस्क देती है, जो हार्ड स्टोरेज के बारे में। तो ऑब्वियसली कोई भी एप्लीकेशन रीड करने के लिए वी नीड दीस टू थिंग्स, सीपीयू एंड स्टोरेज। तो अमेज़न प्रोवाइड्स स्टोरेज आल्सो एंड सर्विस नेम इज ईबीएस। ईबीएस स्टैंड्स फॉर इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। अमेज़न EC2 is a virtual server in a cloud while EBS is a virtual disk in the cloud, ठीक है? तो EC2 एक तरह का वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल सर्वर, और EC2 क्या है? वर्चुअल डिस्क, आपकी रियल डिस्क नहीं। So Amazon EBS allows us to create a storage value and attach them to the EC2 instances. मतलब virtual machine के साथ storage को attach कर। Once the storage value is created, you can create a file system on the top of this value, and then you can run a database, store files, सब कुछ। जैसे आप अपने नॉर्मल लैपटॉप में या डेस्कटॉप में करते हैं वैसे ये भी कर सकते हैं। आप अपने फाइल क्रिएट कर सकते हैं, फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? और बहुत सारे सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं आप। Yes, I'm audible. Yes, sir. Yes, sir. So all these are theoretical part, theoretical aspect of cloud computing. प्रोवाइडर कौन-कौन से हैं, क्या-क्या सर्विस देते हैं, क्या-क्या फीचर्स है, ठीक है? तो सभी लोग इसको बिल्कुल जाएँ, देखें, समझ लें, माइंड में बैठा लें। अगर से यूनिवर्सिटी वगैरह ओपी ओपन होती है और आप लोग को आना होता है, फिर हम लोग उसमें थोड़ा बहुत देखेंगे कैसे VMware इंस्टॉल करके क्लाउड को एक्सेस करते हैं लैब पे, ठीक है? Okay, sir. हाँ, तो बट उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड इवन फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये पता होना चाहिए। अमेज़न के बारे में जान तो अमेज़न के क्लाउड के बारे में पता होना चाहिए कि अमेज़न क्लाउड क्या-क्या सर्विस देता है और किस तरह की सर्विस, जैसे वर्चुअल
जो मशीन देता है वो 3 तरह के देता है, स्मॉल, मीडियम, हाई। स्मॉल का क्या प्राइसिंग है, मीडियम का क्या, आप चेक कर सकते हैं जाके, ठीक है। लार्ज भी है या एक्स्ट्रा लार्ज है, इस तरह की इसमें कैटेगराइज कर रखी है। प्राइसिंग स्कीम क्या क्या है, गूगल क्लाउड कौन सी प्राइसिंग स्कीम फॉलो करता है, अमेजन क्लाउड तो आपका पे पर आवर के हिसाब से फॉलो करता है। तो ये सारी चीजें आपको आइडिया होना चाहिए क्लाउड के बारे में, ठीक है। सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन मैंने बताया था, कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, सबसे अच्छी डेफिनेशन एनआईएसटी ने दी हुई है, तो उसको आप देख सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएस बेस्ड है ये ना, एनआईएसटी। तो इसने दिया हुआ 3 डिलीवरी मॉडल, 4 डिप्लॉयमेंट मॉडल, 5 कैपेसिटी। तो आप लोग पढ़िएगा रूबी गौतम। यस सर। हाँ बेटे, कुछ समझ में आ रहा है या बस Yes, खाली sir. ऐसे ही बस समझ में आया Sir, डाउनलोड? तो मैं कल की क्लास में ना जो जितना मैंने पढ़ाया मैं पूछूंगा आपको, ठीक है। जी और कल की क्लास में जितना मैंने पढ़ाया है उसमें से मैं खुद पूछूंगा क्या क्या समझे आप, तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा सारे। सर कल की क्लास मैंने अटेंड नहीं की। मैं कह रहा हूँ कल जब मैं क्लास लूंगा तो मैं आप लोगों से जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई हैं मैंने उसके बारे में आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा रिविजिट ऑल दिस ओके मैं सर। शेयर करूंगा, ठीक है। उमा, ओके सर। उमा परवीन, उमा परवीन, आर यू देयर? अयूब हसन, अयूब, अयूब हसन, रबाब फातिमा, यस रबाब। सर। वन बैच मैंने किया क्या कहा है, कल आप लोग थोड़ा सा तैयार करके आइएगा सारी चीजें, ओके सर। ओके।